Good morning, students. Students, as we are going through the chapter, the Industrial Revolution, we have discussed about the development of industrialization in England, in which we discuss about the coal and iron industry, how it changed the structure of England and how it helps in the industrialization process. Similarly, we talk about the canals, we talk about the steam power, we talk about the railways. And there are important role in the development of industrialization. So students, today we are going to discuss about the effect of industrialization, especially we are going to discuss about the life of workers. So let's begin the topic, change lives. So there were rich individuals who took risk and invested money in industries in the hope that profits could be made and that their money would multiply. इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो शुरुआत हुई वो इसी आधार पे हुई कि जो भी वहाँ के रिच पर्सन्स थे दे हैड टेकन द रिस्क और रिस्क इस सेंस में था कि दे वांट टू अर्न प्रॉफिट एंड इन दिस होप दे इन्वेस्टेड द मनी और some of them got the success and their money became double or multiply in triple form. So wealth in the form of goods, income, service, knowledge and productive efficiency did increase dramatically, and this is all happened because of the industrialization. Either we talk about the need for the markets, goods had been increased and a large number and variety of goods had been available for the people. When we talk about the income of individual, either they were the businessman, they were the workers or the common people, all they got the benefit of the income. Services had been provided as well as the people got the knowledge about it all, as well as the productive efficiency also increased. And this was evident in broken families, new addresses, degraded cities, and appalling working conditions in factories. So, due to this industrialization, these are the some positive aspects of the industrialization that can be seen. But there are some negative aspects also. जो अभी तक जो परिवार था, जो एक जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर देखने को मिलता था ब्रिटेन में, वो अब धीरे धीरे ब्रेक होने लगा. फैमिलीज जो थी वो ब्रेक कर गई. New addresses in the sense that the people migrate from a rural area to the urban areas in the search of job because of the industrialization. Degraded city, शहर जो अभी तक अपने स्कल्पचर के लिए, अपनी कलाकृतियों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जाने जाते थे, अब ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन these all cities were degraded and these cities become the center of pollution. Either we talk about the water pollution, air pollution. एंड ऐसा आप जानते हैं कि जब शुरुआत थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तो वर्किंग कंडीशन इतनी बेहतर नहीं थी क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल मूव टुवर्ड्स द सिटीज इन द सर्च ऑफ जॉब बट दे डिड नॉट गेट द जॉब. मीन्स सभी को तो जॉब नहीं मिल सकता था एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू लिव इन द स्लम्स. सो हियर द पेस ऑफ ग्रोथ वाज नॉट मैच्ड with the provision of adequate housing, sanitation or clean water for growing population. So simply we can understand that with the increase of population in the cities, the system had been failed to provide them adequate housing system, sanitation or the clean water. और जब ये सब नहीं होगा तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, जब ये सब नहीं होगा तो फिर तो जो है गंदगियाँ फैलेंगी और गंदगी से क्या होगा, जो बीमारियां हैं इवन देन द एपिडेमिक, ये सब बड़ी कॉमन हो जाती हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा. और जब हम बात करते हैं वर्कर क्लास की, तो वर्कर क्लास की कंडीशन ये थी कि दे हैड टू स्पेंड देयर डे इन द सर्च ऑफ द जॉब्स और एट द नाइट दे यूज टू लिव ऑन द फुटपाथ्स. और जो लंदन है वहाँ पे विंटर जो होती है वो बड़ी ठंडी होती हैं और कई जो वर्कर्स होते थे ते उनको मतलब ठंडी का शिकार हो जाते थे, मतलब काफ़ी बीमारियाँ उनको घेर लेती थी
और अगर हम बात करते हैं न्यू कमर्स की, दे वर फोर्स टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। तो जो भी नए लोग आते थे उनकी मजबूरी होती थी कि वो जो है स्लम्स में ही जाके रहें, क्योंकि कंपनियां और जो इंडस्ट्रीज थी वो सभी के लिए काम नहीं दे पाती थी। तो इसी को आगे लेते हुए चलते हुए देखते हैं थोड़ा वर्कर्स की कंडीशन को और डिटेल में। तो यहाँ पे वर्कर की कंडीशन के बारे में एक डिटेल है। अ सर्वे इन 1842 रिवील्ड दैट एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ वर्कर वाज लोअर देन एनी अदर सोशल ग्रुप। मतलब कि ये भाई कि जो वर्कर्स था, सोसाइटी का कोई भी सोशल ग्रुप ले लीजिए, उसमें जो वर्कर्स था उनकी जो लाइफ स्पैन थी वो सबसे कम थी। लाइफ स्पैन मतलब जो उनका एक अप्रोक्सीमेटली जीवन था वो कंपेयर टू द अदर सोशल ग्रुप वो बहुत ही लो थी। और ये लो क्यों थी? ये लो इसलिए थी कि जैसे कि अभी हमने देखा कि ना तो उनके पास हाउसिंग था, मतलब रहने के लिए घर नहीं था, पीने के लिए बेहतर पानी नहीं था, ना ही साफ सफाई की व्यवस्था थी, जिसका एक सीधा सा इफेक्ट ये पड़ता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ जो डिजीजेज होती हैं वो उनको घेर लेती हैं और उनकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही लो हो जाती थी। इसका दूसरा फैक्टर ये है कि जो इंडस्ट्रीज थी, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत की बात कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड तक इंडस्ट्री सभी को काम नहीं प्रोवाइड कर सकता था। काम अगर प्रोवाइड भी होता था तो काम अधिकतर कैसे थे? सीजनल थे। ये भी एक पॉइंट है जो याद रखने वाली बात है बेटा, कि टाइम जो वर्क था उस समय तक सीजनल था, और सीजनल होने की वजह से लोगों को काम कुछ समय के लिए मिलता था, 4-6 महीने के लिए काम मिल जाता था, बाकी के 6 महीने या 10 महीने या 8 महीने जो भी था, दे हैड नो वर्क, एंड फॉर दैट दे हैड टू अगेन रिटर्न टू देयर विलेजेस। और ये भी इतना आसान काम नहीं था कि वो अपने गांव जा सके, क्योंकि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम इतना ज़्यादा नहीं होता था कि वो इजीली ट्रैवल करे फिर आए, क्योंकि उस समय तक ये बड़ा कठिन काम था। और इस बात को लेके जो है उनकी जो लाइफ स्पैन थी वो बहुत ही कम देखी गई, और मोर पीपल डाइड एंड डाइड एट यंगर एज इन द न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज़। बहुत ही बड़ी संख्या में लोग मरे, और जो भी मरे वो यंगर एज में ही थे, और ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन में कारण, जैसा कि अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया। एंड द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ वाज बिकॉज ऑफ इमिग्रेंट्स। और ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई वो इमिग्रेंट्स की वजह से हुई, कि लोगों का जो मूवमेंट था वो शहरों की ओर ज़्यादा हुआ। कारण वही था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और काम की तलाश और अच्छा इनकम कमाने की चाह, यही चीज़ें थी जो लोगों को वहाँ की ओर ले गए। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इन वर्कर्स की लाइफ बहुत बैडली अफेक्ट हुई, जैसे कि डेथ वर प्राइमरली कॉज्ड बाय एपिडेमिक्स। ये एपिडेमिक्स भी उस समय में कुछ थी जो बड़ी कॉमन थी और देखी गई, जैसे कि दीज एपिडेमिक्स स्प्रिंग फ्रॉम द पोल्यूशन ऑफ वाटर। वाटर पोल्यूशन की वजह से कौन सी जो डिजीज है वो फैलती हैं? द कोलेरा एंड टाइफाइड। These were the two very common diseases of that time that had been spread during the industrialization in the cities। और इसके साथ साथ एयर की वजह से भी एक डिजीज फैली जिसका नाम था ट्यूबरकुलोसिस, और कॉमन बोलचाल में हम इसे जानते हैं टीबी के नाम से। तो ये दोनों बीमारियां, खासतौर पे कलरा और द ट्यूबरकुलोसिस, दीज वर वेरी फैटल फॉर दी वर्कर्स। और रिजल्ट ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोग उसके बीमार होने लगे, और जो वहाँ का सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसे हम म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ कह सकते हैं, वो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ जो थी इतनी ज़्यादा इसके बारे में अवेयर नहीं थी, और इतनी ज़्यादा उन्होंने तैयारियां भी नहीं कर रखी थी कि इन सब चीज़ों से किसी हिसाब से बचा जा सके और लोगों को बचाया जा सके। और इस कारण से ये जो डिजीजेस थी ये एकदम डेंजरस होती चली गई, और लोगों को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, लोगों का इन द सेंस दैट द वर्कर्स। और इसमें से कुछ ऐसे थे जो बहुत ही गरीब परिवार से जुड़े हुए वर्कर्स थे, कुछ ऐसे थे जो थोड़े थोड़े रिच थे, जो छोटे छोटे अपने इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डाल रखे थे। उन लोगों ने अब इस समय एक काम किया कि शहरों को छोड़ के शहर के नियर बाई का जो एरिया होता था, जो कंट्री साइड एरिया होता था, वहाँ पे ले जाके अपना जो सेटलमेंट है वो स्टार्ट कर दिया, ताकि वो इन सब चीज़ों से बचे रह सके। तो ओवरऑल व्हाट वी हैव सी इन दिस टॉपिक, so we have seen that the life of workers was not so good, especially when we talk about the beginning era of industrialization। We have seen that a large number of जो workers थे, they suffered either due to the unemployment, housing problem,
drinking water unavailability, sanitation problem, and these all led to them for the epidemics or the different kind of diseases which resulted the decrease in the lifespan of these workers. Authorities were available but they were not aware about such kind of huge problems, और अगर थे भी aware तो they were not able to manage all these problems at all. धीरे धीरे इसमें चेंजेस भी हुए, फिर हम देखेंगे कि उनमें काफ़ी चेंजेस और उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी बेहतर होने को मिली। और इसमें हमने एक और पार्ट देखा था जो हमने पहले डिस्कस किया कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत है वो लोगों ने रिस्क उठा के स्टार्ट किया, और ये लोग कोई बहुत बड़े रिच पर्सन नहीं थे, बस उनमें एक चाह थी कि वो रिस्क उठा सकते थे और उन्होंने रिस्क उठाने के आधार पर ही अपने पैसे को इन्वेस्ट किया और उस पैसे को उन्होंने इंक्रीज किया इंडस्ट्रीज डालने में। अगर आप एक हुवर इन्वेंटर्स एक टॉपिक है बुक में, उसको आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िएगा तब भी आपको एक आइडिया लगेगा कि इन्वेंटर्स वो पीपल थे जिन्होंने रिस्क उठाया। ओवरऑल हमने इसी के बारे में पढ़ा आज। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स। देयर आर 2 क्वेश्चंस ओनली फॉर यू विच यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। व्हाट आर द सोशल इफेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑन इंग्लैंड। तो सोशल इफेक्ट क्या था, इस सोशल इफेक्ट्स में आपको बताना है कि जो वर्कर्स की लाइफ थी उनकी लाइफ के बारे में उनकी क्या क्या प्रॉब्लम थी, कौन सी समस्याएं थी, इन सब चीज़ों को मेंशन करना है। और कैसे जो थोड़े रिच पर्सन थे या कुछ ज़्यादा ही रिच पर्सन थे उन्होंने कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत की। और द सेकेंड क्वेश्चन है बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज हार्ड टाइम फॉर वर्कर्स एक्सप्लेन। यहाँ पे आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना है कि वर्कर्स की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। So these are the 2 questions which you have to do in your notebook. Thank you students and have a nice day.